Hey Swapnil, good evening. Good evening, ma'am. Seems that you are going very busy in your work. No, I have my exams around from 15th of Jan. For 15th of. Final semester exams of the MBA. Oh, okay, final semester. So it comes in January, not in summer. Oh no, not in summer. It's the July batch. I have a July, like Jan batch. Oh, Two batches are run simultaneously. One batch that is admitted in Jan, another which is admitted in June. mm. How is it going? Going pretty, honestly speaking, boring. How is it different from your graduation? Because all the subjects are new. For graduations, we have all subjects, medicine, patho, and we love that subjects. All the 19 subjects that we love. Right. If you come here, there are business statistics, then microeconomics is also there, Hmm. then CCH is also there, then NABH is also there. Hmm. These are the things which is completely new, Hmm. and for the thing, I would admit that I don't like maths at all. And here we Yeah. have to face that only Yes. because And I you. don't have contact with maths since my 10th standard. Oh, yeah. And you get this assurance from this experience. Yes. Ah. And before that, I was preparing for my NMAT. Up until December, I have started just now. Oh my God. It That's why. is amazing. Means you are really doing amazing. Lot of courage. Lot of courage. Yes. Mm. And here comes our superstar for today. Yes. Hey Suman. Yes. I guess man is trying to Yeah. join. Sometimes, yeah, it takes time, a few seconds to join and Yes. No, no, arranging everything, I guess, meeting and all yeah, that thing. takes time. I would like to introduce, as we were saying about the core group members, I would like to introduce a member for our team, if it's Sure, okay, for sure, call. sure, sure. We have a talk with Dr. Aditya Jain previously, right? Yes, yes. So he has shown the interest to be a part of team. Oh, good. That is amazing. Yes. So is he, will he be able to join someday? Like, I will uh, ask him for the time. yeah. When your exams will be over, then do that because Mine will be over around 20th of Feb. 20th of So Feb. yeah, because there are 12 subjects 12 and subjects. Okay. yes, and 3 to 4 days of Viva. So that's why it is 1 month limited. I had only 7 subjects in my final year exam. Right now there are eight, I guess. BDS have eight subjects in the final year right now. Okay, community medicine, including Yes. community medicine. Yeah. At that time, it was only practical, not theory. But commendable, you handling 12 subjects. Oh my God. Hats off to you. No, 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 it's nothing like that. Every one of you have done that thing. I have nothing. Hey, Suman, how are you? Hi, Hello. hi, hello. Hi. Hello. Suman ma'am, I apologize for not being able to deliver the templates and everything this time. I No was issues. at Yeah, all good. exhausted. Nah, see, I made it on my own then. That's the thing. Yeah. I just picked up that one picture that you had sent, na, and then Yeah. go. I mean, that was easy. Others were all, I don't know. I just picked up one, whichever. Yes. But you did a good job, Suman. Yeah, I mean, I appreciate your presence of mind. That okay, मतलब आपने ना तुरंत action लिया. So I wanted to discuss this incident, but now this is an opportunity. So you didn't wait for Swapnil to make it, and you just showed this empathy without talking about it because you might have thought that हाँ वो भी किसी चीज में busy होगा. And now when I Yeah, was looking, he is having his final exam from 15. So answers are always hidden, and you just picked up one image, created it, did that change, and then I also posted it on my status. So good action. This is good teamwork. yeah. Understanding each I other. was sure. I Not mean, left it we out. are coming Not from that team. We know that it's definitely he is occupied. Otherwise, he would do, yeah, and not lashing out at people, not questioning them again. क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? And what you have displayed is the true leadership. thank you. Good thinking. Yeah, Thank you. good work. Yeah, I am. I am damn nervous. When you are damn nervous, then only you perform very well. My son is saying that, Lee, that just let it start. After that, you will not even come to know. You are so used to talking then. ना just एक बार start Actually. करने में थोड़ा सा लगता होगा.
बस 5 मिनट भी बहुत हो गए, 1 मिनट। Okay. Okay. उसके बाद तो सब अपने आप फ्लो में आ जाएगा। Right. Right. So I think I should send another message as a reminder. So you'll have to put me on spotlight now, Pallavi. Yes, yes, I will do that. And I don't have to share the screen, so that's fine. Oh, okay. Yeah. Good that you told me. When are your exams, Swapnil? Mines are from 15th of Jan till 20th of the Feb. Final sem of MBA. I have only 4 papers from 22nd to 25th, and usi mein I'm so worried. Oh my god. You No, asked me. In it's Jan, okay. Suman, you are also planning in January? Yeah. Oh, Mm. we will start exactly at 8. So 5 more minutes to go. All the best, Suman. Where is she? Thank you. Yeah, you're looking great today. Beautiful smile.
So it is going to be 8 p.m. Sorry, 8 p.m. sharp. So is good evening, everyone. So it is already 8 p.m. and our esteemed Kindness Corner team member Suman Daga is going to honor the stage today. So Suman, the place is yours. Thank you so much, Dr. Pallavi. Hello, friends. Happy New Year to all of y'all. A most and a warm welcome to my team members, Dr. Pallavi, Dr. Swapnil, Dr. Tripti, Dr. Deepika. Thank you so much for joining in. Okay, so I am uh, Suman Jaga from Mumbai. I am co-hosting this show, this awareness session today for all of y'all. Let me tell you all, let me ask you all one question. Is anyone taking a shower at this moment? No, I guess that will be. Is anyone in the washroom at this moment by any chance? Mr. Ratanji or Dr. Deepika or anyone else who are the participants? Can anyone answer, please? If anyone is in that space, A person cannot be present at two places simultaneously. then I think it would be very nice if we could have the cameras on, because any other place, I don't think the cameras are required to be off. Can we all have this camera switched on, please? Thank you so much, Dr. Deepika. Thank you. Because we are at a place, Kindness Corner, ऐसी जगह है जहाँ पे हम listening space provide कर रहे हैं. And I think talking to a blank screen is very boring. जब हम इंसानों से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम इंसानों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तब इट इज वेरी नाइस अगर हम इंसानों का फेस भी देख सके. सो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप आइए एंड अपना वीडियो ऑन रखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव वेरी इंटरैक्टिव सेशन टुडे. अब काइंडनेस कॉर्नर में हम करते क्या है? काइंडनेस कॉर्नर दो पर्पस के लिए बना है. फर्स्ट, हम उसमें लिसनिंग स्पेस, नॉन जजमेंटल लिसनिंग स्पेस देते हैं. जो हमको कोई चीज सुनाना चाहता है, जो हमसे कोई चीज, हमसे कुछ बात करना चाहता है, एनीवन हु नीड्स अ फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड जिसके साथ वो अपनी दिल की बात शेयर कर सके. सेकेंडली, हम वीकली अवेयरनेस सेशंस लीड करते हैं ताकि जो हमने एक साल में सीखा, हाउ टू बी गुड लिसनर्स, हाउ टू बी कंपैशनेट पीपल, वो हम आपको भी दे पाए, आप भी बेहतरीन लिसनर्स बन पाए और अपनी लाइफ में लीडर्स बन सके. क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? Yes. थैंक यू सो मच. सो ये किस्सा शुरू हुआ 2023 दिसंबर में, जब डॉक्टर पल्लवी, शी हैज बीन माय फ्रेंड फॉर 2-3 years बिफोर दैट. हमने कई सेशन साथ में किए थे. शी कॉल्ड मी अप एंड शी आस्क्ड मी, क्या तुम इस वर्ल्ड को ज्यादा कंपैशनेट बनाना चाहोगी? आई सेड, वाओ, इतना बड़ा विजन, ऑफ कोर्स मैं इस विजन का पार्ट बनना चाहूंगी. फिर क्या हुआ? दैट वाज दिसंबर 2023. 4th दिसंबर ये ग्रुप बना, एग्जैक्टली 4th दिसंबर, जब ये आइडिया कंसीव हुआ. एंड डॉक्टर पल्लवी ने हम सभी को, बहुत सारे टीम मेंबर्स जो और भी थे, जिन्होंने बीच रास्ते में कुछ और नया विजन देख के अपना रास्ता चेंज कर लिया, हम सबको बहुत बेहतरीन तरीके से थियोरी यू, जो एक किताब है, उनके कॉन्सेप्ट सिखाए, बताया कि अवेयरनेस में डाउनलोडिंग कैसे देखा जाता है. हैंड होल्ड करके वीकली सेशंस उन्होंने लिए ताकि हमारे रिलेशंस बेटर हो सके, ताकि हम बेटर लिसनर्स बन सके, ताकि हम लीडर्स बन सके. और जो आइडिया कंसीव हुआ था दिसंबर 2023 में, वो विद इन 1 year, एग्जैक्टली दिसंबर 2024 5th दिसंबर को ये ग्रुप ओपन हुआ फॉर द पब्लिक. क्योंकि
जो हमने सीखा, हमने डिसाइड किया हम सबको दे, सबको वो कंपैशनेट लिसनिंग देना बहुत जरूरी महसूस किया हमने. So within 1 year, the conceived seedling became a baby and was delivered. अब लास्ट 1 मंथ से 4 सेशंस आप लोग सबने अटेंड किए हैं. वो 4 सेशंस में हमने क्या किया है, डॉक्टर स्वप्निल ने, डॉक्टर दीपिका ने, डॉक्टर तृप्ति ने मन से अपनी लाइफ की स्टोरीज आपको बताई, आपको बताया कि कैसे उन्होंने डाउनलोडिंग की अवेयरनेस से अपने रिलेशंस चेंज किए और बहुत सारी एकदम नॉन जजमेंटल तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ शेयर की क्योंकि उन्होंने वो रिसीव किया था. अब हम आ गए हैं 4th वीक में, तो आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर बहुत कुछ प्रैक्टिस किया है. तो कैन यू ऑल टेल अस कि आपने क्या समझा डाउनलोडिंग के बारे में, आपने कैसे उस डाउनलोडिंग की अवेयरनेस से अपने लाइफ में कोई इंसिडेंट्स चेंज किए या सिर्फ अवेयर हो गए, अरे क्या ये मेरी डाउनलोडिंग है या एक्चुअल रियलिटी है. क्या कोई शेयर करना चाहेगा? और कोई शेयर करना चाहेगा क्वेश्चन नहीं है, शेयर करना है. क्योंकि क्रिकेट में चाहे हम कितने भी रूल्स बुक पढ़े, चाहे हम कैच पकड़ने के लिए कितने ही बुक्स पढ़े, पर जब तक हम ग्राउंड में उतर के कैच नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. जब तक आप अपनी डाउनलोडिंग को कैच नहीं कर पाएंगे आप बेटर लिसनर्स बन नहीं पाएंगे. तो बताइए कहाँ कहाँ आपने अपनी डाउनलोडिंग कैच की और आपने डाउनलोडिंग का मतलब क्या समझा अभी तक. Yes, Silva ma'am, you can move ahead. You can unmute and speak. प्लीज बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके बताइए. एनीबडी, अगर एनी ऑफ द टीम मेंबर्स आल्सो अगर वो कुछ शेयर करना चाहते तो प्लीज आप भी शेयर कर सकते हैं. चलिए मैं ही शुरू करती हूँ कैसे मैंने आज सुबह ही अपनी डाउनलोडिंग को कैच किया. सुबह 9 बजे मेरी हाउस हेल्प आ जाती है, बहुत हंसते हंसते एग्जैक्ट पंक्चुअल. डोरबेल बजी, ट्रिंग ट्रिंग, खुला दरवाजा, वो आई. थोड़ी सी डाउन लग रही थी. जो जोश उसके राम राम में एवरीडे रहता है वो आज नहीं था. मैं अपसेट हो गई, क्या हो गया. उसने आते ही कहा, भाभी आप एक और लड़की देख लीजिए. मैंने कहा, मन में मैंने सोचा अभी तो मैंने उसको रेज किया है नए साल पे और अभी ये बोल रही नई लड़की देख लीजिए, ये क्या मतलब हुआ. ये तो अच्छे हैं, इन लोग सीख लेते हैं, होशियार बन जाते हैं और फिर इनको अपना चेंज कर लेना है. ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कुछ जुबान पे नहीं कहा था. और फिर मुझे टंग टंग पल्लवी मैम की आवाज आई, बी अवेयर, ये डाउनलोडिंग तो नहीं है. मैंने कहा हो सकता है. रुको सुमन रुको, देखो समझो पहले रियलिटी क्या है. मैंने उसको पूछा बहुत प्यार से, क्या हुआ अर्शदा, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ है तो बताओ, मन खोल के बताओ. पता है उसने क्या कहा, उसने कहा भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी. तो मैं सोच रही थी अगर एक और आप लड़की रख लेते तो आराम हो जाता. हो हाय तौबा, ये देखिए. और मैं क्या कहानियां बना रही थी अपने दिमाग में. तब आई अंडरस्टूड ये डाउनलोडिंग तो पीछा ही नहीं छोड़ती है, चाहे हम कितना भी सीख ले समझ ले, इमीडिएट तोड़ के जैसे अंदर घुस जाती है. पर हमारा काम क्या है, जस्ट बी अवेयर कि डाउनलोडिंग है कि रियलिटी है. जैसे ही अवेयरनेस आ गई आपने उसको सस्पेंड कर लिया, बहुत शांति से बहुत प्यार से आपने आगे कम्युनिकेशन किया तो पूरा रास्ता खुल जाएगा, कुछ नया ही आपके सामने आ जाएगा. इंटरेस्टिंग ना. तो सुबह सुबह ही मुझे एक लेसन मिल गया रिगार्डिंग माय डाउनलोडिंग.
Wow, Suman, lovely. थैंक यू, थैंक यू। एंड शी इज सच ए नाइस हाउस हेल्प ना, तो मैं तो डर गई थी बाबा ये चली जाएगी तो मेरा काम कैसे होगा, पर नहीं, खुशखबरी लेके आई थी वो हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। काइंडनेस कॉर्नर का एक मिशन है, वो मिशन है कि होलिस्टिक हीलिंग एंड मेंटल वेलबींग, राइट। अब होलिस्टिक हीलिंग एंड मेंटल वेलबींग के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं सुमन डागा फ्रॉम मुंबई। मेरे 2 बच्चे हैं और एक ही पति है। आई मीन एक ही पति बहुत होता है, एक की तो डाउनलोडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि 1-2 और होते तो शायद पता नहीं कम ही हो जाता, शायद ट्राई नहीं किया। बट and professionally I'm a hypnotherapist. I also take online and offline classes on gratitude. मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ and senior citizens को भी सिखाती हूँ। एट प्रेजेंट मैं एमए भी कर रही हूँ एंड जिसकी एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स जनवरी मंथ में ही है। मेरा एमए के सब्जेक्ट है वैदिक लिटरेचर, बिकॉज मुझे सनातन धर्म के बारे में सुनना, समझना और उसको बच्चों तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पेंटिंग एंड डांसिंग। पेंटिंग में मेरी जान बसती है। जब पेंटिंग करती हूँ तो ऐसा लगता है मैं मेडिटेशन में पहुंच गई हूँ। पर अब ये तो मेरा हो गया मेरी पर्सनल हिस्ट्री। अब हम आते हैं रिगार्डिंग द पर्सनल एजेंडा ऑफ काइंडनेस कॉर्नर, दैट इज मेंटल वेलबींग एंड होलिस्टिक हीलिंग। अब मेंटल वेलबींग इतना बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल वेलबींग? फॉरगेट व्हाट इज द मीनिंग, आप ये बताइए मुझे कि मेंटल वेलबींग का सबसे इम्पोर्टेंट और इजी तरीका क्या है अपनी लाइफ में लाने का? आपको क्या लगता है? एक एक चीज अगर कोई भी कुछ बताएगा तो समझ मजा आएगी। जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमें भी समझ नहीं आएगा कि 4 हफ्ते से हम कुछ बोल रहे हैं, किसी के दिमाग में कुछ जा रहा है, किसी के हार्ट को कुछ टच कर रहा है, हम या सिर्फ हम अपनी ही खुशी में बोलते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं अपनी मेंटल वेलबींग को बेटर करने के लिए? क्या इसके बारे में किसी का कोई ओपिनियन है? क्या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हाँ, मैं जस्ट ये समझ में आता है कि मानसिक स्थिरता या अगर आपके पास है तो लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन जब भी आती है सो यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर मेंटली आप यू आर फाइन विथ मेंटली, जो बोलते हैं ना आजकल, मेंटली हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटली हेल्थ, तो बहुत बड़ा काम करती है ये हमारी लाइफ में, ऐसे मुझे एक्सेलेंट। लगता है। जस्ट अ थॉट। नहीं नहीं, थैंक यू। एकदम सही है जो आप बोल रहे हो, वो एकदम राइट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक बैलेंस तरीके से अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर ले तो आप मेंटली आपका वेलबींग मच बेटर होगा, उससे एक स्टेबिलिटी आती है। अब उस मेंटल वेलबींग के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें करने के लिए एक सिंगल चीज पे हम बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य एक बहुत ही सोशल एनिमल है। आप सबको ये पता ही है। हम इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द बहुत ही रिलेशंस है और ह्यूमंस ही ह्यूमंस है एंड वो रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिलेशंस जितना हमें सुख देते हैं उतना ही हमें दुख भी देते हैं और उन्हीं रिलेशंस के कारण हमारा मेंटल वेलबींग ऊपर नीचे, हमारी स्थिरता ऊपर नीचे होती रहती है। पर हम उसके बिना रह भी नहीं सकते क्योंकि हमें सुख भी उन्हीं से मिलता है। अब उस चीज को बेटर करने के लिए एक हथियार हमें दिया गया है जो सिर्फ ह्यूमंस के पास है। वो हथियार क्या है? एक दूसरे से बात करना। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट डॉक्टर शिल्पा। इट इज एक दूसरे से बात करना, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन। एक बंदा अगर हमें मिल जाए, एक पर्सन, एक रिलेशन हमें मिल जाए जिससे हम खुल से बात कर सके, जिससे कोई जजमेंट ना करे, हमारा कोई ब्लेम ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, तो हमारे तो प्यारे प्यारे हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। अब
ये कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है। कम्युनिकेशन खुद के बीच में भी हो सकता है, खुद के प्रति भी हो सकता है, पर हम जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है जिससे हमारा मेंटल वेलबींग बेटर होगा, उसकी बात करते हैं, जिसे हम डायलॉग भी कहते हैं। डायलॉग यानी दो के बीच में एक कहता है, एक सुनता है, एक कहता है, एक सुनता है। आप सोचेंगे अरे नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी वही तो होता है। सासू माँ मेरी बोल रही है, मैं सुन रही हूँ। हस्बैंड मेरा बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ। नहीं, आजकल तो उल्टा होता है। वाइफ बोल रही है, हस्बैंड सुनता है। मैं बोल रही हूँ, बच्चे सुनते हैं। दो फ्रेंड्स आपस में बोल रहे हैं, दो नेबर्स आपस में बोल रहे हैं, बॉस और कलीग सबऑर्डिनेट बात कर रहे हैं। सब जगह तो ऐसे ही होता है। एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। उसमें नई बात क्या हुई? यही तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो हमें कि कम्युनिकेशन ऐसा क्या चीज है जिससे हमारी मेंटल वेलबींग बेटर होगी? ठहरिए। सासू माँ ने कुछ कहा। सासू माँ ने कहा, पनीर की ग्रेवी आज पतली है। मैंने मन में क्या सोचा, इनको तो हमेशा मेरे में खराबी ही दिखती है। क्या मैं ये देख रही हूँ कि एक्चुअली पनीर की ग्रेवी पतली है कि नहीं है? मैं रिएक्ट तो अपनी ही स्टोरी पे कर रही हूँ कि इनको तो मेरे में हमेशा खराबी दिखती है। इनकी मन चाहती मेरी देवरानी कुछ बनाती तो वो कभी कुछ ना कहती। पति ने कुछ कहा, आज मेरी मीटिंग है, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मूवी नहीं चल पाएंगे। इनके लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये पहले जैसे रहे ही नहीं। पूरा टाइम नहीं है, करो गुस्सा करो, आके चिड़चिड़ करो। क्या मजा आता है आजकल? हम बाहर कहीं घूमने जाते ही नहीं है। क्या रियलिटी क्या है मैंने ये नहीं सुनी। मैं अपनी ही कहानियां सुन रही हूँ, मैं अपनी ही जजमेंट्स पास कर रही हूँ, मैं उसी को सुन रही हूँ। तो क्या हुआ? मतलब क्या मैं उन्हें सुन रही हूँ? नहीं, मैं क्या सुन रही हूँ? मैं अपने दिमाग में जो स्टोरी चल रही है उनको सुन रही हूँ। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, वो नहीं हो रहा। मैं ही बोल रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग बोल रहा है और मैं उसी पे रिएक्ट कर रही हूँ। ये डायलॉग नहीं हुआ, ये मोनोलॉग हो गया। मोनोलॉग यानी कि खुद ही बोलो और खुद ही उसका जवाब दो। क्या हम एक्चुअली उस पे रिएक्ट कर रहे हैं जो रियलिटी है, या मैं उस पे रिएक्ट कर रही हूँ जो स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही है? अगर हमने किसी एक पागल पर्सन को रास्ते में चलते हुए देखा, पागल यानी जो अपने आप से बात कर रहा है, मतलब जोर से बोल रहा है तो अपने आप से बात कर रहा है, हम क्या सोचेंगे, ये इंसान तो पागल है। मतलब इसमें इम्बैलेंस है, मेंटल इम्बैलेंस है। सही? पागल का मतलब तो यही होता है। और हम क्या कर रहे हैं? पूरा दिन हम अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, अपनी ही स्टोरी पे जवाब दे रहे हैं। ये सही है कि मैं जुबान से वो निकल नहीं रहा है, पर चल तो यही रहा है। तो क्या हम पागल नहीं हुए? हमारी मेंटल वेलबींग कहाँ से ढंग की होगी जब हम एक्चुअल कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे। हम अपनी स्टोरी पे, अपने जजमेंट पे, अपनी डाउनलोडिंग पे ही रिएक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मेंटल वेलबींग दूर चला गया और हम उसी को ढूंढ रहे कम्युनिकेशन में। मैं अपनी ही एक कहानी बताती हूँ, एक छोटी सी इंसिडेंट। क्या हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है। 1 बज गया था, लंच टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही है। मेरा बड़ा बेटा जो 25 इयर्स का है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है। कभी वो घर से काम करता है, कभी वो ऑफिस जाता है। वो आजकल का हाइब्रिड सिस्टम समझ में ही नहीं आता हमको। हमको तो लगता है काम मतलब सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, घर में शांति रहेगी। पर नहीं, वो घर से भी काम करता है। अब इंसान जब घर से काम करेगा तो स्केड्यूल सब ऊपर नीचे हो ही जाएगा। खाना तैयार है, जुमेद आ जाओ खाना खाने की टेबल पे। आ रहा हूँ, अभी मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरी मीटिंग चल रही है, टाइम लगेगा। 1 बज गई, 1:30 हो गया, फिर से मेरा यही मैंने कहा, फिर से उसका वही जवाब। 2 बज गई, फिर से वही जवाब। अब मैं सोचूं बेचारी हर्षिता भी वेट कर रही है, उसको भी खाना खाना है और इसका तो खत्म ही नहीं होता है। 2:30 बजे तक तो मेरा पारा चढ़ गया ऊपर। ये तो मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है, इसको तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ये तो कोई चीज की वैल्यू ही नहीं करता। हमेशा की कहानी है इसकी, हमेशा डाइनिंग टेबल पे टाइम से आएगा ही नहीं।
सारी ये मेरी स्टोरी, मेरे ओपिनियंस, मेरे बिलीफ सिस्टम्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बाहर वो शांति से अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा है। अब पॉज, अब क्या हो रहा है आप ये समझिए। आप लोग, आई थिंक हम उस जनरेशन से हैं जब हमने एक टेप रिकॉर्डर को देखा। सबको पता है टेप रिकॉर्डर क्या होता है? ऐसा कोई है जिसे पता नहीं टेप रिकॉर्डर क्या होता है कोई? रेज योर हैंड तो मैं बता दूं टेप रिकॉर्डर क्या होता है। ठीक है, सबको पता है टेप रिकॉर्डर क्या होता है। अब टेप रिकॉर्डर में हमारे जमाने में क्या होता था कि हम एक टेप डालते थे एंड वही सॉन्ग्स चलते थे। तो अगर मुझे किशोर कुमार पसंद है तो मैंने किशोर कुमार का टेप डाल दिया और मैंने किशोर कुमार के सॉन्ग सुनने लग गई। अब वो किशोर कुमार के सॉन्ग्स चलेंगे क्योंकि वो टेप में लिखा है किशोर कुमार और उसी के सॉन्ग्स चले हैं। अब क्या होगा? अब मैं बोलूंगी कि ये तो वही सॉन्ग्स चलते जा रहे हैं, कुछ नया हो ही नहीं रहा है। नहीं, नया होगा कैसे? जब मैंने वही सिलेक्ट किया तो वही आएगा। यही होता है हमारे साथ भी। हमने जैसे ही कोई सिचुएशन देखी, हमने जैसे ही कोई पर्सन को देखा, हमने जैसे ही कोई एक्शन या कोई इमोशन को देखा, हमारा टेप रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाता है दिमाग में और वही सॉन्ग लूप में चलता रहेगा। ये तो ऐसा ही है, इसका मतलब तो ये ही है, इसको तो गुस्सा ही आता है, ये तो कभी मुझे जो भी ब्ला 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 ब्ला। पर पॉइंट इज कि हम वही कैसेट को शुरू कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया सॉन्ग आ जाए। नया सॉन्ग कैसे आएगा? इसीलिए तो हम कहते हैं पहले बी अवेयर कि ये डाउनलोडिंग, ये कैसेट आपने शुरू की है। जब आप अवेयर हो जाएंगे कि ये किशोर कुमार की कैसेट मैंने शुरू की है, तो आप उसको सस्पेंड कर पाएंगे। सस्पेंड यानी आप उसको पॉज कर पाएंगे। जब आपने उसे पॉज किया, जो हम करते थे टेप रिकॉर्डर में, तो आपकी डाउनलोडिंग सस्पेंड हो गई। जब डाउनलोडिंग सस्पेंड हो गई तभी तो हम नया सॉन्ग सुन पाएंगे। है ना? है ना मजेदार? हम ये कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं है हम ये करते जा रहे हैं। और सबसे खास चीज ये है कि एक जो कैसेट है ना, इसमें एक बड़ी डाउनलोडिंग ये है कि आई नो वाली डाउनलोडिंग सबसे खतरनाक डाउनलोडिंग है। आई नो ये किशोर कुमार है, तो फिर यू ऑल्सो नो कि किशोर कुमार के कैसेट में किशोर कुमार के गाने ही बजेंगे। आई नो वाली ये डाउनलोडिंग है कि हमेशा से ये लेट ही आते हैं। तो जब हम हमेशा से ये लेट आने वाली सॉन्ग चलाएंगे तो वो हमेशा से हमें लेट आते हुए ही दिखेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? बी अवेयर कि ये कैसेट कौन सा है, पॉज करो, सस्पेंड करो, चेंज करो, सॉन्ग को चेंज करो। तो आपका नया नया कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, नया फ्यूचर बनने लग जाएगा और एक्चुअल तरीके से मेंटल पीस भी मिलेगा जब आप वो स्पेस देंगे नया कोई चीज क्रिएट होने के लिए। अब मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। क्या हुआ? मैं गई अंदर उसके रूम में गुस्से में, चन 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 चन, हद हो जाती है, ये मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता। मैं कब से बोलती जा रही हूँ आओ आओ आओ, मेरी बात ही नहीं सुनता है। हमेशा से इसकी यही प्रॉब्लम है। और जैसे ही मैं अंदर घुसने वाली थी, मुझे पल्लवी और मेरे सारे टीममेट्स आते हुए दिखे। यानी ऐसा नहीं कि वो नागपुर से सची आ गए, पर उनकी आवाज आने लगी धीरे से, बीवेयर डाउनलोडिंग, बीवेयर डाउनलोडिंग, बीवेयर डाउनलोडिंग। अब तो है ना, जैसे ही बीवेयर सुनती हूँ मुझे लगता है वो हो गया बी अवेयर की जगह वो बीवेयर होने लग गया। देखिए मैं भी यही बोल रही थी, बी अवेयर की जगह बीवेयर 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 चालू हो गया, बीवेयर डाउनलोडिंग। मैं शांत हो गई। थैंक यू टू माय टीममेट्स, मैं शांत हो गई। थैंक यू टू काइंडनेस कॉर्नर, टू कंपैशन, मैं शांत हो गई। एंड मैं आगे गई। जैसे ही मैं शांत हो गई और उसके रूम में गई, मेरा स्पेस पूरा चेंज हो गया। मैं धीरे से रिस्पॉन्ड की उसकी बात को और मैंने उसको पूछा, बहुत प्यार से पूछा कि 2:30 बज गए हैं, आपको खाना खाना है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उसने मुझे कहा मैं आपकी बात सुन रहा। अच्छा, उसके पहले मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप सुनना चाहते हैं उसने क्या कहा? क्या आपको मजा आ रहा है मेरी कहानी सुन के?
Very curious to know. बहुत 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 awesome, मजा आ मजा रहा आ रहा है, सुनाओ। तो जैसे ही हम अंदर गए, जैसे ही मैं अंदर गई ना, और मैंने उसको कहा, बेटा आप मेरी बात नहीं सुनते हो, मुझे लगता है कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी इनफ, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुनते हो, यू डोंट लिसन टू मी। उसने क्या कहा, मतलब मेरी आंखें खुल गई। उसने कहा, मम्मी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तभी तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मेरी मीटिंग चल रही है, मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे टाइम लगेगा। सुनना मतलब लिसन डजंट मीन अग्री। मैं आपको सुन रहा हूँ डजंट मीन कि मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ कि मैं इमीडिएटली आऊं और खाना खाऊं। ये दो अलग चीजें हैं। एंड अग्री, अगर मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये जरा भी नहीं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैं वो काम अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ जो आप मुझे बोल रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है इस मोमेंट के लिए। कहीं पे भी इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये बात तो राइट है, रिस्पेक्ट तो वो मेरी बहुत करता है। मैं 1000 तरीके से रोज ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ कि ये बच्चा मेरे ऐसे रिस्पेक्ट करता है, ये बच्चा मेरा ऐसे रिस्पेक्ट करता है, तो मैंने इसे ऐसे क्यों कह दिया कि ये सुनता नहीं है, मतलब इफ ही डज नॉट लिसन टू मी, ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी। एंड देन ही सेड, हमेशा की कौन सी बात हो गई, कल सुबह तो मैं टाइम से खाना खाया था, परसों भी मैं टाइम से खाना खाया था, उसके पहले भी मैं टाइम से खाना खाया था। अगर 10 दिन में 15 दिन में एक बार मैं नहीं आया तो मतलब हमेशा हो गया? ऐसे नहीं, हमेशा तो नहीं हुआ। ये भी बात एकदम राइट है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं। उसका जो एक समझाने का तरीका था, that happened only because I gave him space to talk his mind out। क्योंकि मैं रियलिटी सुनने के लिए तैयार थी। मैंने ये देखा रियलिटी कुछ और हो सकती है। मेरी डाउनलोडिंग जरूरी नहीं है वो ही रियलिटी है। मेरी डाउनलोडिंग सही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है। हो सकता है मेरे बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा या कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये बिलीफ बन गया मेरे दिमाग में कि अगर कोई पर्सन सुनता नहीं है तो वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा एप्लीकेबल है। एक नया फ्यूचर, एक नई चीज बनाने के लिए आप उसको सस्पेंड करके जो आज हो रहा है, जो अभी रियल टाइम में हो रहा है, उसको सुनने की कोशिश तो करें। ये जरा भी नहीं कहूंगी कि ये चीज जो मैंने महसूस की या जो आपने कभी भी अपने डाउनलोडिंग में महसूस की, वो रियल नहीं है, वो वैलिड नहीं है। है, एकदम रियल है, रियल थी, एकदम वैलिड है, वैलिड थी। पर क्या वो इतनी ही रियल, क्या वो इतनी वैलिड अभी भी है? इस पे ध्यान दीजिए। पहले एटलीस्ट क्वेश्चन तो करिए, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो आज की रियलिटी है? जब आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप को, जब आप उसको सस्पेंड करेंगे, तब एक नया भविष्य बन सकता है, एक नई रिलेशन, एक उस रिलेशन में कुछ नयापन आ सकता है। जब हम लिसनिंग स्पेस देंगे तब सामने वाला खुल के बोल सकेगा। जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तब सामने वाले को भी लगेगा कि हम जज नहीं हो रहे हैं, हम अपनी मन की बात इजीली कर सकेंगे। और तब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बेटर होगा। जब कम्युनिकेशन बेटर होगा तो रिलेशनशिप बेटर होगा। जब रिलेशनशिप बेटर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मेंटल वेलनेस बेटर होगा। क्या आप सब इस चीज से सहमत हैं? Absolutely. Absolutely. It makes sense. यस। Yes. तो आप बताइए अब, व्हाट डू यू थिंक? आज का सेशन जो अभी तक हुआ है उसमें क्या टेक अवेज थे? आपने क्या देखा, आपने क्या समझा अपने लाइफ में? आपने ये सारी चीजों को कहाँ देखा और आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं? कोई भी टेक अवेज, कोई भी वर्ड्स जो आपको लगा कि यस, ये वर्ड याद रखने वाली चीज है, प्लीज सब वीडियोस ऑन करके बात करिए ताकि हमें भी लगे कि हम आपसे कनेक्ट हो पाए हैं, हम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस ला पाए हैं।
रतन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम देख सकते हैं कि आपने शुरुआत से देखा है, सुना है, बहुत मन लगाकर सुना है। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट सेशन में अटेंड कर रहा हूँ। हर बार जनरली मैं मिस कर जाता था, सोचता था कि अटेंड करूंगा। फर्स्ट सेशन किया, पहले तो मुझे डाउनलोड का मतलब पता नहीं मैं समझ पाया हूँ कि नहीं। यही कि कंटिन्यूअस ऑफ थॉट को उसको ब्रेक करना है। मेरा मतलब मैं ये समझ पाया हूँ डाउनलोडिंग से कि भाई जो भी हम अपने अंदर माइंड में सोचते रहते हैं कि एक सीक्वेंस बनाते चले जाते हैं, उसके पीछे स्टोरी बना लेते हैं कि ये इसने ये कहा, इसका मतलब वो होगा, इसने इस वजह से कहा वो कहा। उस चेन को तोड़ने का मेरा मैं समझ पा रहा हूँ, उसे आप लोग कहते हैं कि डाउनलोडिंग ब्रेक करना। एब्सोल्युटली, आप बहुत सही है रतन जी। तो डाउनलोडिंग का ये मतलब भी है कि जैसे आपने कोई ओपिनियन कोई चीज के लिए फॉर्म कर ली है, कोई जजमेंट कोई चीज के लिए आपने फॉर्म कर लिया जो पास्ट के आपके एक्सपीरियंस के कारण आपके दिमाग में आ चुका है। इट कैन बी चाइल्डहुड, इट कैन बी नया भी कोई रिलेशन हुआ है और पहली बार दूसरी बार कोई भी ट्रिगर्स हो जाते हैं जिसके कारण कोई एक जजमेंट बन जाती है, तो वो जजमेंट को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। तो आपने सही पकड़ा उसको कि जब एक डाउनलोडिंग शुरू होती है ना, तो वो एक सिंगल नहीं आती है, वो अपनी बहनों को भी ले आती है, अपनी फ्रेंड्स को भी ले आती है साथ में और एक पूरी स्टोरी बन जाती है। और वो स्टोरी के कारण वो एक चश्मा है आपकी आंखों के सामने, जिसके कारण जो रियलिटी है हम वो नहीं देख पाते, हम वो चश्मे को ही देखते हैं जो हमने पहन के रखा है। तो जब हम अगर हम बस इतना समझ ले कि हो सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ और है और जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ और है, अगर हम वो पॉज डाल दे तो हम उसी को कहते हैं कि वो डाउनलोडिंग को अवेयर हो जाइए कि ये एक डाउनलोडिंग हो सकती है, उसे आप पॉज करिए और फिर देखिए, फिर बात करिए कि क्या एक्चुअल रियलिटी है। दैट्स राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन में भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि डाउनलोडिंग क्या होता है। यस डॉक्टर पल्लवी, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? एकदम बहुत बढ़िया आपने समझाया है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये सारी ओपनिंग्स जो आपको आज मिलने वाली है, मिल रही है ऑलरेडी, इससे आप अपने लाइफ में और ज़्यादा अवेयरनेस से आपकी ज़िंदगी के लोगों को देख सकते हैं। और जब आप ये देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं आप खुद को भी एक तरह से किसी दुःख से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर शिल्पा, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी? अ, फिलहाल मैं भी वो सब सुन रही हूँ और अभी डाउनलोडिंग का मतलब से मैं ये समझ गई हूँ कि लोगों को सुनना चाहिए पहले, और मैं उस पे अभी काम कर रही हूँ। मीन्स मेरा जस्ट बिगिनिंग भी नहीं है, जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। तो मैं थोड़ा समय लूंगी, फिर बताऊंगी। इतनी उम्दा इंसान को हम देखना चाहेंगे, क्या आप कैमरा ऑन कर सकेंगे? आई एम नहीं ठीक। आप जो भी जितना भी आप ट्राई कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम तो 1 साल से करते-करते भी अभी भी ट्राई कर रहे हैं। आप 4 हफ्तों में ऑलरेडी वो समझ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, आज की सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बहुत टच किया, आपको मूव किया, उसके बारे में आप बोल दीजिए, बताइए? जब से ये सेशन चालू हुआ है, हुँ। अ, तब से मैं पहले जो भी बोलता था उस पे तुरंत बिलीव करती थी। मीन्स विश्वास हो जाता था कि हाँ, वो ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। पर अब जब से ये सेशन चालू हुआ है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में सोच रही हूँ कि बाबा इसने ये ऐसा क्यों किया होगा? या ऐसा मीन्स अ, डायरेक्ट उसके ऊपर मैं जज नहीं कर रही हूँ कि वो ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा। मीन्स अभी कोई फ्रेंड होगी, तो वो बात अभी नहीं कर रही है, तो मे बी उसका उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होगा, या मेरा उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ
नहीं हो पाया होगा, इसलिए थोड़ा सा अपना मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो थोड़ा सा मिस वो टाइम पे हो गया होगा। तो मैं अभी जब भी किसी से बात करती हूँ, कोई अगर बोलता है की "हिने असं केलं, तिने तसं केलं" मीन्स तो मैं तुरंत बोलती हूँ कि ठीक है, अपन उसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद अपन डिसीजन लेते हैं। ये मैं अभी मेरा चालू हो गया है। फैंटास्टिक। ये तो बहुत बड़ा बड़ा सोच आप अपनी लाइफ में चेंज कर लिए। हम तो बहुत इजीली कोई अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम गिव अप कर देते हैं। पर ये दिमाग में रखना कि हाँ, हो सकता है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है कुछ हमारी बोलने से करने से किसी को दुख हुआ हो, उसके कारण ये हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, दिखाता है कि आप बहुत ही पावरफुल सोल हो, जिसको एक्चुअली चीजों को सीख के अपनी लाइफ में डालना, यूज करना का बहुत जोश है। ये सब डॉक्टर तृप्ति की वजह से हुआ है, जो मेरे साथ सब अच्छे से फ्रेंडली मुझे मिले हैं और मैं उनसे ज्यादा जुड़ी हूँ, तो मैं थैंक यू तृप्ति एंड ऑल टीममेट्स कि मुझे एक थोड़ा सा नया सोचने को मिला, तो आप सभी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर तृप्ति। और कोई हेलो सुमन जी, क्वेश्चन? हाँ या मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट ओपन माय कैमरा बिकॉज वो बहुत इको होता है। आई एम आउट ऑफ इंडिया, सो ओके ओके, नो हाँ। इश्यूज। हाँ, तो अभी जो भी आपने कहा ना, वो आपका विथ योर सन जो भी हम्म, हुआ है, तब हम्म, दिस इज 4th सेशन आई एम लिसनिंग। तो मुझे भी ये लगता है कि सामने वाला जो भी सिचुएशन में है, इफ अगर हम धीरे धीरे ये स्टडी करें कि जैसे लगा कि आपका अंदर चालू हो गया था टेप रिकॉर्डर की, ये ऐसा करता है खाने पे टाइम नहीं, एंड वी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम अंदर तो हमारी टेप चालू हो जाती, हमें पता भी। अभी तो इतना अवेयरनेस, आई मीन सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम 15 ईयर्स 15, हाँ। तो उससे पता भी चल जाता है कि ओ ये चालू हो गई है ये टेप अंजलि की। समटाइम्स मीन्स मे बी मीन्स आई विल टॉक कि अगर हमारे साथ भी ऐसे कभी होता है तो ऐसे आपके इसमें से आपने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है उसमें से यही पता चलता है कि अगर उसके साथ वो जो सिचुएशन है, इफ आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन कि ऐसे सिचुएशन में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, दैट इट्स नॉट इन माय हैंड। बहुत अच्छा आपने इलिस्ट्रेशन दिया है कि तो हम भी अगर धीरे धीरे ये करते जाएंगे तो ऑन दैट मोमेंट अवेयरनेस आ जाती है, जैसे आपके इसमें आ गई है कि उदाहरण में आ गई है कि स्टार्ट के ये पूरा ग्रुप दिखने लगा आपको, अवेयर बी अवेयर बी अवेयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर ये आप लोगों के एग्जाम्पल के या जो भी एक्सपीरियंस है ना, अगर वो भी हम याद रह जाते हैं उस टाइम में, कुछ तो भी याद आ जाता है, स्टॉप दैट जो भी अंदर चल रहा है, वी कैन स्टॉप दैट वन। और हम ये जो बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बस हमें यही तो अवेयरनेस चाहिए कि अवेयर हो यही, जाए या हम या लोग। या सुमन जी, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा था। कई दफा क्या होता है कि रात को नींद खुल जाती है, जैसा आपने कहा कि एक थॉट आया, वो सीक्वेंस इतना तेज आगे बढ़ता चला जाता है कि दोबारा नींद आके नहीं देती। और फिर अब लेटली मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, तो अब मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेता हूँ, वही जो आपने कहा डाउनलोडिंग वाला। तो वो जो सीक्वेंस बनता है और वो चेन रिएक्शन जो बनता चला जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक दोबारा नींद नहीं आती है। तो राइट, वो जो आपने कहा ना कि ये कि डाउनलोडिंग को ब्रेक करो, वो करो, तो वो मैं वैसे अप्लाई करता हूँ। अब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ जब नींद खुलती है। तो वही एक प्रोसेस है, वो चाहे आप
किसी से बात कर रहे हैं, चाहे किसी से मिलने जा रहे हैं, उससे मिलने से पहले ही अपना पूरा एक आइडिया बना लेते हैं, मैं इससे मिलूंगा, वो ये क्वेश्चन पूछेगा, उसका मैं ये जवाब दूंगा, चाहे सिचुएशन उसने कोई न्यूट्रल होके बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम अपने माइंड में पहले से किसी से मीटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, पूरा एक खाका सा बना लेते हैं कि भाई मैंने इस एंगल से इस तरह बात करनी है, जिसका ये जवाब मिलेगा तो उसका मैं ये रिस्पॉन्ड करूंगा। तो वो चेन जब टूट जाए, जैसे आपने कहा अपने सन के लिए कि मैं अपना सीक्वेंस बना लिया, अरे ये तो ये भी नहीं करता है, मेरी बात भी नहीं सुनता है, मेरी इज्जत भी नहीं करता है, और बाद में आपने फिर न्यूट्रल होके जब उसका फीडबैक वापस लिया, सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, सारे थॉट प्रोसेस चेंज हो गए, उसका व्यू पॉइंट आपने रखा। तो इसका जनरली ये भी रहता है कि अगर कोई भी आदमी दूसरे की सिचुएशन में जाके सोचे, तो मुझे लगता है कि वो फिर अपनी जो ओपिनियन बना रहा है उसको रेक्टिफाई और मॉडिफाई डेफिनेटली कर लेगा। राइट राइट। तो इसमें आप मतलब आप शेयर कर रहे हैं या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बस बेसिकली मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे जो अब हम किसी से आमतौर पे जब हम मिलने जाते हैं या कुछ जाते हैं, तो जो हम लोग थॉट प्रोसेस को बना के जाते हैं, तो वो काफी हद तक, और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि आदमी को कोई भी जहां जा रहा है, जिससे मिल रहा है, थोड़ा माइंड में प्लानिंग भी होनी चाहिए। एकदम ब्लैंक जाके आप किसी के सामने बैठ जाओ तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। राइट। तो अब ये आता है कि भाई अगर हम सोच के चलते हैं तो फिर पहले हमारा माइंड सेट हो जाता है, तो उससे हम उसके सेंटेंसेस का आंसर ग्रैब करते हैं। और अगर हम ब्लैंक जाते हैं तो मीटिंग में शायद कम्युनिकेशन का उतना ना मिले। तो इसका मिडवे कैसे हम असेस करें? अगर हम माइंड सेट कर गए तो शायद हम उसके उतनी बातें ग्रैब ना करके उसको न्यूट्रल होके ना सुने, हम अपने माइंड सेट के हिसाब से उसके सेंटेंसेस का मीनिंग निकालते जाएंगे। अगर हम बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं तो कि भाई जो होगा उसका उस टाइम सोच के हम जवाब दें, तो वो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इन बिटवीन का प्रोसेस कैसे निकालें? सो व्हाट आई थिंक ना, मतलब आपका इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्चुअली हम सब, आई मीन आई थिंक हमारे सारे टीम मेंबर्स सोच रहे हैं कि इसका सही तरीका क्या है काम करने का। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन रतन जी। सो मुझे ये लगता है कि देखिए, हम जब कहीं नई जगह जा रहे हैं, कोई नए सपोज प्रोफेशनल गेटअप में आप जा रहे हैं किसी से बात करने के लिए एंड ऑल दैट, तो आपको कुछ तो बैकग्राउंड चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि नहीं तो आप कौन से बेस पे काम करेंगे। पर आप, एक होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एक होता है ओपिनियन बना के रखना। आपको, आप ओपिनियन नहीं बना रहे हैं, आप उस पर्सन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एंड उसको आप जकड़ के नहीं रखेंगे, आप उसको एक मतलब आइस क्यूब जैसे जमा नहीं देंगे, पर जब जैसे जरूरत होगी पानी की जैसे यूज करेंगे, ताकि आप उस कॉन्वर्सेशन में बराबर फ्लो हो सके। क्या डाउनलोडिंग का मतलब क्या है? हम कंटिन्यूसली उसी चीज पे कंटिन्यूस मतलब उसको पकड़ लिया है हमने, तो उस चीज के कारण हम नई चीजें नहीं देख पाते हैं। पर आप वो नहीं करने वाले, आप ट्रिक्स नहीं होंगे, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास में, मतलब जैसे पानी के 3 स्टेजेस हैं, स्टीम, लिक्विड एंड आइस। आप आइस मत बनिए, आप फिक्स मत होइए, पर आप पानी को, इंफॉर्मेशन को फ्लोइंग रखिए। This is what is my take. Dr. Pallavi, Dr. Tripti, or anybody, would you all want to add something to this? रतन जी, आप इसमें से क्या समझ पाए जो सुमन जी ने कहा? मुझे लगता है कि जो सुमन जी कम्युनिकेट करना चाह रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई यू हैड द इंफॉर्मेशन सामने वाले के बारे में,
लेकिन उस इंफॉर्मेशन से ओपन होके जाओ, या अपने जो भी उसके बारे में कंक्लूजन अपने माइंड में बनाए हैं उसको ओपन रख के जाओ, और उस सिचुएशन में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंसेस निकालते जाओ. दिस इज व्हाट आई थिंक शी वांट्स टू कन्वे. Yes, right. And does that answer your question? दैट में दैट इज देयर. जनरली तो ऐसा होता है, लेकिन उतना इतनी जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाना, साइमल्टेनियसली एकदम चेंज ओवर हो जाना, टेक्स टाइम. Kindness corner इसीलिए बना है because it takes time. इसमें एक और चीज ये भी है कि जैसे यू सेड इट टेक्स टाइम ना, सो डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज नॉट बिकॉज, पर आपको इसमें ये देखना है कि आपका इंटेंशन क्या है. आपको सिर्फ मतलब आपकी कन्वर्सेशन में जो भी आप कंपैशन नहीं जाना चाहिए, काइंडनेस रहनी चाहिए आपकी कॉन्वर्जेशंस में. आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसमें भी भला ही देखनी चाहिए, गुडनेस देखनी चाहिए, और फिर जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो जैसे भी कम्युनिकेशन का रूट जाएगा वो सही ही जाएगा. सो इंटेंशन आपका देखिए कि वो हिले ना. इंफॉर्मेशन अलग है. जब हम एक जो हम डाउनलोडिंग यूजुअली हम अपने नोन रिलेशंस में, या इवन पॉलिटिशियंस या कोई सेल्स पर्सन आ गया, तो एक सेल्स पर्सन के लिए मेरा डाउनलोडिंग ये हो सकता है कि इसे तो अपना सामान बेचना है, तो वो डाउनलोडिंग में कंपैशन नहीं है, उस डाउनलोडिंग में जजमेंट है. तो जो आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, क्या वो उसका इंटेंशन कंपैशन है या उसका इंटेंशन जजमेंट है, वो आप ही पता कर सकते हैं. आपको पता है अंदर कि वो क्या है. तो इंटेंशन अगर आप कंपैशन रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपका जो इंफॉर्मेशन भी मिला है वो सही तरीके से आप यूज कर पाएंगे. क्या कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी और हुई? एक्चुअली आज के टाइम में जैसा माहौल है, जैसे जनरल आदमी का देखा जाता है, इतने जो जगह जगह जो भी मिलता है, अब इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अगर आदमी न्यूट्रल होके या अलर्ट होके ना करे तो उसे चीट होने के बहुत जबरदस्त चांसेस रहते हैं. आजकल आपने देखा है जिस तरह साइबर क्राइम के हर चीज को वो अगर उसने किसी को चीट करना है तो वो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि भाई वो आपके ये हो गया, आपके साथ ये हो गया, आपके वो, मतलब कुछ ना कुछ कहानी स्टोरी वो आपको डेफिनेटली सुनाते ही है. तो अब अगर आदमी इतना न्यूट्रल और काइंड होके और अलर्ट होके वो सारा ना करे तो आजकल आप जानते हैं चीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं. वो आज का माहौल है, तो वन हैज टू बी वेरी अलर्ट, केयरफुल, और उसको सामने वाले को जज करके फिर उसके बाद कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जाता है, जो आज का माहौल है. व्हाट आई थिंक, यू कैन करेक्ट मी. आप मुझे ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपैशन होना वीकनेस है, कंपैशनेट होना या काइंड होना वीकनेस है? काइंड होना वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर आपका काइंडनेस दूसरे को, अब मान लो किसी ने किसी को चीट करना है, तो वो आपके ऊपर हार्श या एग्रेसिव या उस तरह हो के तो आपके पास नहीं आएगा. वो आपके पास ऐसे एनवायरनमेंट बना के आएगा कि वो बड़ा नीडी है, या वो जो है ही इज द राइट पर्सन, या जो वो कह रहा है आपको कन्विंस करेगा कि भाई यस, मैं जो हूँ कह रहा हूँ कि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल, जो भी सरकमस्टांसेस में बेस्ट पॉसिबल है. तो उस केस में अगर अलर्टनेस और थोड़ा सा केयरफुलनेस, और ये बिल्कुल ही ब्लाइंडली कि भाई ठीक है ये जो कह रहा है ये ठीक है, और उसका वो, तो वो फिर मुझे लगता है कि उसमें जो आज का माहौल है, यू कैन बी डिसीव्ड समवेयर.
there is my opinion is that compassionate होना या kind होना doesn't mean बुद्धू होना, doesn't mean कि आप alert नहीं रहो. जज करना मतलब ये नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आप ये मत देखो कि उस पर्सन का इंटेंशन क्या है या उस पर्सन के एक्शंस का मतलब क्या है. जजमेंट लेके पकड़ना उसको और उसी को सही मानना, ये चीज की बात पे बात हो रहे हैं. अब ये नहीं है कि आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते, आप इवैल्यूएट करिए सिचुएशन को, आप इवैल्यूएट करिए इंटेंशंस को, पर आप उसको ये मत समझिए, मतलब दिस इज नॉट बीइंग कंपैशनेट डजंट मीन कि आप आंख बंद करके खाली भलाई देख रहे हो जबकि वो भलाई है नहीं. पल्लवी मैम, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? यस श्योर. सो रतन जी, इंफॉर्मेशन एक पार्ट है और डाउनलोडिंग एक पार्ट है. तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आजकल साइबर क्राइम होते हैं, आजकल हमारे अकाउंट से पैसे कोई भी किसी भी तरह से ये कर सकते हैं. दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, जैसे आपने कहा. तो इसके लिए मेरा वर्क क्या है? टू बी मोर केयरफुल एंड अलर्ट एंड अवेयर. सो डाउनलोडिंग आपको क्या सिखाता है? थ्योरी यू आपको बताती है बी अवेयर ऑफ योर डाउनलोडिंग. सो व्हेन आई एम गोइंग विद दैट पर्सन, जैसे आपने कहा, वो पर्सन आपको बहुत अच्छे से आपको अटैक नहीं करेगा, वो प्यार से बात करेगा. अभी अगर आई एम अलर्ट और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आजकल ऐसा कुछ होता है, आई एम अलर्ट, आई एम नॉट द विक्टिम टू एनी अदर पर्सन्स इमोशन. मे बी इट इज फील गुड इमोशन और फील बैड इमोशन. आई एम अवेयर. और अभी उन्होंने मुझे कुछ डिटेल्स मांगे, मेरे पर्सनल डिटेल्स. However kind, compassionate they sound, which they may not be, but my choice is to be aware. And I have this information, so I am aware and alert that my work is not to give my personal information to anyone. And what is downloading? Downloading is I go home and I say, आजकल तो सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं. तो ये मैंने जो मेरा ओपिनियन बनाया है कि सब लोग तो लूटने के लिए बैठे हैं, ये मेरी डाउनलोडिंग है. अभी अगर सब लोग मुझे लूटने के लिए बैठे हैं एंड इफ आई गो इन द बैंक एंड मुझे कुछ काम है और वहां का बैंक को कोई एम्प्लॉय स्टाफ मेंबर है जो बोल रहे हैं कि बताइए मैडम मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या है? सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं. आई विल नॉट टेक दैट हेल्प थिंकिंग दैट ये मुझे लूट सकते हैं. अगर कोई आया है, हो सकता है कि आई एम आउट समवेयर एट अ, मैं वेकेशन पे गई हूँ और मैं सही में प्रॉब्लम में हूँ और समवन इज देयर टू हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम. इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, मैं अपने डाउनलोडिंग से एक्ट कर रही हूँ. आई एम रिफ्यूजिंग टू टेक हेल्प विदाउट ऑब्जर्विंग, मतलब जांच पड़ताल करने की वजह मैं डाउनलोडिंग में फंसी हुई हूँ. तो आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ. इनफैक्ट अगर आपको डाउनलोडिंग की नॉलेज नहीं है तो फिर आपके ज्यादा चांसेस है टू गेट ट्रैप्ड इन अदर पीपल्स ट्रैप्स, क्योंकि डाउनलोडिंग आपको अवेयरनेस सिखाता है और आप ज्यादा अलर्ट रह सकते हैं क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है. आप देख सकते हैं कौन इंसान सही में हेल्प करना चाहता है, कौन नहीं, कौन मेरे ऐसे पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है जिसकी जरूरत नहीं है. तो मैं डाउनलोडिंग से ऑपरेट नहीं कर रही हूँ. आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द इंफॉर्मेशन आई हैव. डाउनलोडिंग इज लाइक क्या यार, ये बारिश हो रही है, कितना गीला गीला कीचड़ हो गया है, हमारे कपड़े कैसे सूखेंगे, मैंने बड़ा प्लान किया था बाहर जाना है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये एक इन्फॉर्मेशन है. कोई बोल रहा है "वाह, बारिश हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है, ठंडा हो गया है, पूरी गर्मी चली गई. मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि पकौड़े खाने का चांस मिलता है. तो ये गुड बैड ये मेरी डाउनलोडिंग है. इन्फॉर्मेशन क्या है? बारिश हो रही है. मेरा काम क्या है? छाता लेकर निकलना. तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि बाकी लोग बैठे हैं ये करने के लिए, आपका काम है छाता लेकर निकलना, क्योंकि आप अवेयरनेस में है, अलर्ट है. Does that help, Ratan ji? नहीं, डेफिनेटली अब थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस में तो चेंज आएगा, क्योंकि ये तो जनरली होता है कि
आदमी कोई भी होता है, जब भी किसी थॉट प्रोसेस में जाता है तो उसका चेन सीक्वेंस चलता चला जाता है। तो वो तो अब ये तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं ऑलरेडी भी कर रहा था, क्योंकि कई दफा होता था मेरे को, जैसे आई एम ऑलरेडी 70, तो मेरे को ये दिक्कत आती थी, क्योंकि कई आदतें होती हैं, वो कहते हैं ना, ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो उसको चेंज ओवर करने में बहुत टाइम लगता है। आदमी की बचपन की रूट्स जो होती हैं, बचपन के जो आपके डीप इम्प्रेशन है, जो आपके बहुत कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो आपके माइंड पे इम्पैक्ट इतना ले आता है कि वो आपके जब भी कोई उस हालात में आप पहुंचते हो, तो वो इंसिडेंट आपको गवर्न कर देता है कि भैया ऐसे सिचुएशन में मेरे साथ ये हुआ था, तो इसका ये वो है। ये कौन कह रहा है? ये वही तो हमारा जो पास्ट जो हमारे माइंड में जो एम्बेड हुआ है, वो ही आप वार्न करता है यही कि तो यार उस डाउनलोडिंग यही हाँ, तो डाउनलोडिंग है, और इसी को देखना है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी नहीं बना सकता अगर आप ना चाहे तो। और ये आपकी रियलिटी है भी नहीं। आप एट द एज ऑफ 70 इस मीटिंग में को अटेंड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डाउनलोडिंग क्या है, काइंडनेस कॉर्नर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो आपकी रियलिटी है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपकी डाउनलोडिंग है। हैट्स ऑफ टू यू। right. नहीं, चेंज तो खैर मैंने इसीलिए आप लोगों का ग्रुप ज्वाइन, पिछली 4 बार मैं जनरली अलार्म लगा नहीं पाया, तो ऑक्युपाइड होने की वजह से मैं सुन नहीं पाया। तो आज स्पेसिफिकली कल मैंने अलार्म लगाया था, मैंने कहा लेट मी नो हाउ दे गाइड फॉर एनीवन। तो अच्छा लगा आपका सेशन, इट्स नाइस। आई वुड थोड़ा लाइक सा टू कॉल यू इंस्टेड। एट एज ऑफ 70 आप अपनी डाउनलोडिंग के बारे में अवेयर कर रहे हैं, मतलब इट्स इंस्पिरेशन फॉर मी आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। एक्चुअली तो थोड़ा सा मैं खुद ही सोचता था कि भाई इतना चेंजेस तो, मतलब इस स्टेज में काफी चीजें तो हम लोग की पक जाती हैं, उसको चेंज करना टेक्स टाइम, बट स्टिल इट्स नाइस टू लिसन ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस रतन जी, आपके लिए आपने एक नई शुरुआत की है। यू आर इंस्पिरेशनल फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। So any more questions or should I give the assignment? Ma'am, I want to ask one question. See, I understand downloading is not the right way. Many of the times, we should not have an preassumption of the thing. But some assumptions come after a long time. What we have gone through, or like we have whatever we have gone through the situation or something, and we that after that thing we have certain assumption about a person or something, which might be sometimes or might be right itself. So how to cancel those downloadings, or how can we overcome those downloadings, or what we have to do about those downloadings? पहली बात तो सुनंदा जी, डाउनलोडिंग गलत है, डाउनलोडिंग इज नॉट राइट। उस डाउनलोडिंग को आप छोड़ अवेयर हो जाइए। वो हमने कहीं नहीं कहा कि डाउनलोडिंग गलत है। इट इज जस्ट कि डाउनलोडिंग है एंड बी अवेयर, दैट इज इट। डाउनलोडिंग एक थॉट है, मतलब जैसे कि एक थॉट है आपके दिमाग में, उसको जब उसके बारे में जब आप अवेयर होने लग जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो पावर हो जाएगा कि मैं उसको थोड़ा टाइम के लिए सस्पेंड कर दूं, मैं थोड़ा टाइम उसको पॉज कर दूं और एक्चुअली देखूं कि रियलिटी क्या है। आप अपनी कोई भी थॉट को, अपनी कोई भी इमोशन को गलत मत ठहराइए। वो है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसके बारे में अवेयर होइए।
Yes, Dr. Pallavi, you want to add something? You have well said. So Sunanda, did you get your answer? Yeah, what I got, I will explain my word. Huh. The downloading is not bad, but we should, whatever we have downloaded, we should check with the reality whether it is same or not, and according to that we should be. एक तो जहां पे भी हम अपने कॉन्वर्जेशन में शुड डाल देते ना, वहीं हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हम नई डाउनलोडिंग शुरू कर देते हैं वहां पे कि ये शुड वाली चीज होनी चाहिए, ये शुड वाली चीज नहीं होनी चाहिए. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड सुनंदा जी इज दिस द फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को? This is my second or I think third session. ओके, सो है ना, आप जैसे आई सेड इन द मिडल ऑफ द सेशन कि क्रिकेट रूल बुक से नहीं खेला जा सकता, ग्राउंड पे उतर के ही उसे खेला जा सकता है. वैसे ही जो भी आपने समझा, आप रियलिटी में स्टार्ट बिकमिंग अवेयर. जब वो चीज आए तब आस्क योरसेल्फ, इज दिस माय डाउनलोडिंग, एम आई अवेयर, और इज दिस द रियलिटी? जब आप वो चीज करने लग जाएंगे तब आपका एक्सपीरियंस, आपका समझ इस चीज के लिए चेंज होगा. अभी जो हम बोल रहे हैं, आप उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे. तो जैसे कि अभी जो मैं असाइनमेंट देने वाली हूँ, आप सब नोट कर लीजिए उस असाइनमेंट को. कल सुबह आप 5 सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस अपनी लाइफ के वो लिखेंगे, जो जिसके बारे में आपको लगता है ये 5 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और उन रिलेशंस के बारे में क्या 3 जजमेंट है, हर एक रिलेशन के बारे में क्या 3 जजमेंट आपने बना के रखे हुए हैं, वो आप लिखेंगे. आप सोचेंगे नहीं, दिमाग से निकाल के आप पेपर पे लिखेंगे उसको. और जब आपने वो लिख दिया तो पूरे दिन में जब भी उस पर्सन के साथ में आपका कोई भी इंटरेक्शन हो, तब आप अवेयर रहिए कि क्या वो जजमेंट चल रहा है उस कम्युनिकेशन में, या मैं एक्चुअली उस सामने वाले को सुन रही हूँ, देख रही हूँ, समझ रही हूँ. आप उस अवेयरनेस से काम करिए, क्योंकि पहले तो इतनी सारी चीजें होती है तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये जजमेंट्स क्या है, ये ओपिनियन क्या है, ये डाउनलोडिंग क्या है. तो पहले उसको समझने के लिए आप नोट कर लीजिए कि कौन सी टाइप की जजमेंट्स होती है पर्टिकुलर रिलेशन में. Am I clear with the assignment? Can somebody repeat the assignment? Yes, Suman. Yes, Dr. Deepika, please repeat. Asa, you just said yes, that you understood the assignment. Rutuja, did you understand the assignment? Rutuja Pawar? यस मैम. लाइफ के 5 इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है उनको जब भी उनसे बात होगी तो हाँ हाँ. फोकस करना है कि हम उनसे लिटरली बात कर रहे हैं या फिर जो जजमेंट बना के रखी है वो खुद सुन. Yes, good, appreciate it. Thank you so much. But there's one thing, आपने रिलेशन लिखे, उसके बाद आपको 3 जजमेंट भी लिखने हैं जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है उस रिलेशन के लिए. जैसे कि मैंने सोच के रखा था कि माय सन डज नॉट रिस्पेक्ट मी, ये एक जजमेंट बना दिया ना. अब जब मैं कम्युनिकेशन में रहूंगी तो मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी, आई एम गोइंग टू बी जस्ट अवेयर that downloading that judgment is not right or wrong. The question is not about right or wrong, the question is just about being aware. क्या मैं उस जजमेंट के क्या मैं उस डाउनलोडिंग के बारे में अवेयर हूँ, या क्या मैं वो मेरा बच्चा जो मुझे बोल रहा है सिर्फ उसे सुन रही हूँ. मैं क्लियर? It should be a positive judgment, na? Yeah, negative one. What kind of judgment? Anything. जजमेंट इज जजमेंट. डाउनलोडिंग गुड बैड कुछ नहीं होती, जजमेंट गुड बैड कुछ नहीं होता, जजमेंट जजमेंट होता है. डाउनलोडिंग होती है. अवेयर होने की बात है. काइंडनेस कॉर्नर आपको बता रहा है सिर्फ बी अवेयर.
कि ये एक डाउनलोडिंग, क्या ये एक डाउनलोडिंग है? ये एक्शन याद है ना? बी अवेयर, क्या ये डाउनलोडिंग है? क्या ये डाउनलोडिंग है? अपने आप में दिमाग में ये पिक्चर बना लो, है ना? एक मोर्चा लेके हम 5 जन आ रहे हैं आपके पीछे पीछे और बोल रहे हैं झंडा लेके, क्या ये डाउनलोडिंग है? क्या ये डाउनलोडिंग है? Okay, so thank you so much. Thank you very much for coming. प्लीज अपना असाइनमेंट करिएगा. जब तक ग्राउंड में रियलिटी में उतर के आप अवेयरनेस में ये डाउनलोडिंग को नहीं पकड़ेंगे, वो कैच नहीं खेलेंगे, तो न आप सिक्सर मार पाएंगे और न आप आउट हो पाएंगे. बस आप खड़े रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. नॉलेज तो बढ़ता रहेगा, आई नो बढ़ता रहेगा, पर विजडम नहीं आएगा उसमें. आपकी लाइफ आगे नहीं जाएगी. So thank you once again. Good night, everyone. See you all next week with lot of more new insights on listening with compassion. Kindness Corner की तरफ से. Bye bye. Thank you very much, Suman. You just stole the show, and it was a fantastic program with so much of simplicity. Thank you so much. You made us aware about our downloading in a very innovative, creative, simplified way. And I am sure that every person who has listened to this program has benefited immensely. In fact, they don't know how they are going to attract a lot of love to their life. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. It was all under your guidance. Thank you so much. But you have done a fantabulous job. Thank you so much. Thank you, Team Kindness, for all the support. Thank you. Yes. Thank you, madam. Thank you, madam. especially to you. Yes. Good night and see you in the next week. Date, time, it will be updated in the group. I hope you all are in the group. If not, then do you want me to send the link in the chat box? If any one of you is not a part of the group, WhatsApp group, then please say yes, type yes or say yes. And also please share this to more and more people, क्योंकि इस दुनिया को हमें कंपैशनेट बनाना है और हमें सेल्फिश नहीं बनना है. काइंड होके इस मैसेज को जितना ज्यादा फैलाएंगे उतने ज्यादा लोगों को फायदा होगा. I have sent the link in the chat box. If you are not a part of the group, then please click the link. I give you 30 seconds to click the link so that we can end up the session and we can just say good night to each other. All right. I hope that you have clicked the link and joined the group. So thank you very much for your kind listening. Thank you very much for being here. And thank you very much, Suman, for being a fantastic leader. Thank you very much. Thank you. Thank you so much to all the participants. Good night. Good night.